हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा दिव्या माता जी। दिव्या माता जी, हम यही बात कर रहे हैं जो लास्ट सेशन में हमने किया था, तो उसका थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एंड देन we'll do little practice and understand how to implement what we have learned in the previous session. So previous session was all about NVC, which is non-violent communication. It was done by Datri Mataji, and there we learned how we can communicate with children without using any violent communication. बिना डांटे हम कैसे कम्युनिकेट करके बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं. So we did one role play where there was a mother and a child 4-year-old girl, and the situation was कि they had gone to the temple where the little girl did not behave as the mother had expected her to behave. So when they came back home, mother was little heavy with the child, explaining her the philosophy that what should be done in the temple. So is it okay for a 4-year-old child to be told that there are certain ways how to behave in the temple? You should not speak, you should not jump around, you should not run around, or how to convey this to a little 4-year-old. Okay, so that was the role play. And then we discussed that there are, first of all, we must accept that there are many, many ways to deal with a situation. Not just one or two ways. There are plenty of ways we can deal with children, right? So we tried to brainstorm. Everyone was divided in two groups, and devotees, they brainstormed that how, what else, what is the other way to handle such a situation. So this is what basically we are going to do, that we will learn one technique and then we will practice that technique so that all of you can apply that in your um, real uh, practical day-to-day lives. Okay. So I just need that. This is a practice session, so I do not want to practice with fans. Please put the camera to your faces and not on the screens, ceilings, right? That we can, yes, thank you. Otherwise, I'm just seeing the ceilings. Yes, thank you. वो कौन स्टार्ट करेगा? मुझे यहाँ सिर्फ दिव्या माता जी दिख रही हैं, दिव्या माता जी एंड लीना माता जी. तो एक हम ऐसे सिचुएशन ले सकते हैं. देर इज वन सिमिलर सिचुएशन वी कैन टेक अगेन कि बच्चे को आप टेम्पल ले गए थे और टेम्पल में बच्चे ने बात नहीं सुनी और वो पूरा टाइम उधर भागता रहा बच्चा या खेलता रहा, और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था कि एक जगह बैठो और लेक्चर सुनो या शांति से रहो, तो वो नहीं हो पाया. तो how would you tackle that situation, provided the techniques that you learned in previous session? So I would like if Divya Mataji and Leena Mataji can start because you were present in the class. Yes, Mataji. Mataji, Yes. one thing we discussed that we can engage the child in other ways in the temple. And as you said, after the session, beforehand only we can make up the mind of the child that we are going to temple and you will meet some devotees there. You can greet them and we can ask them, do you like to greet with Hare Krishna? And Yes. accordingly, whatever the child does, it is we can just observe, and after that
if there is any feedback after coming home, we can just discuss the situation. Okay, this devotee Hmm. came, so very nicely you greeted, or if the child did not greet, okay, what were you feeling at that time? Why did you not greet? Or we can express our way. Okay, if the child behaved erratic, then I was not feeling very good that you behave like this in the temple. So like that we can say, and we can give them more ways of self expression. Okay, it is okay if they did not like to greet at that time or anything, but they can have many other ways like sketching, drawing, or to Hmm. express themselves. Hmm. Very nice. लीना माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं टाइप कर रही हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग भी टाइप कर सकते हैं सिमिलर सिचुएशन को कैसे हमें डील करना है। लीना माता जी, अंशु कुमारी माता जी, आप भी थे लास्ट सेशन में। दीप्ति माता जी, आनंद किशोरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। Yes, Vidyavati Mataji, we are what we are discussing is we are just revising Saturday's class. उसमें हमने ये डिस्कस किया था, एक रोल प्ले किया था। उसमें था कि एक बच्ची है 4 साल की, वो टेम्पल गई और उसने वो भागती रही इधर से उधर और उसने ग्रीट नहीं किया डिवोटीज को, तो उसकी मदर उसको डांट रही है। हम इस सिचुएशन में और क्या कर सकते हैं? तो जिन डिवोटीज ने अटेंड किया था लास्ट सेशन, वो लोग आइडियाज बता रहे हैं। प्लीज इस सेशन का बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे जब आप प्लीज अपना वीडियो ओपन करके और अपना फेस भी दिखाएं और प्लीज पार्टिसिपेट करो इसमें। बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस, अनलेस यू डिस्कस हाउ टू डील, ये एक थ्योरी सेशन रह जाएगा। चंद्रकानी चित्रा माता जी, दीप्ति माता जी एंड अंशु कुमारी माता जी। Any other ideas, or do we take the next situation? Okay, let's take another situation. Would anybody like to give a situation जहाँ पे प्रॉब्लम आती है? आनंद किशोरी माता जी, आपने एक सिचुएशन डिस्कस करी थी और उसके जी जी। आपको आंसर्स भी मिले थे, राइट? तो आपने उसको अप्लाई किया, कुछ रिजल्ट मिला? आनंद किशोरी माता जी, आई एम आस्किंग यू। माता जस्ट 1 मिनट। यस। जी माता जी। अ, माता जी मतलब मेन वही है जो मैंने देखा कि हाँ माधव को जैसे बताया था कि इसको और हमें मतलब रोल प्ले वगैरह मैंने बताया था कि मैं वो कर देती हूँ उसके साथ, है ना। और माता जी ने सजेस्ट किया था कि मैं भी सब मिक्स हो गया कि कौन सा मेरा था कौन कोई सा बात नहीं। नहीं। आपने ये पूछा था कि वो अगर जैसे बाहर भाग जाता है एकदम से हाँ। बच्चा, हाँ, हम्म। तो उसका तरीके माता जी ने बताए थे आपको। अभी जैसे वो भाग रहा है ना, तो
मोस्टली मैं देख रही हूँ कि मेरे को ही उसको हैंडल करना है। अगर हम्म मैं काम हूँ तो ही हम्म वो, जैसे माता जी ने ये बताया था कि हाँ, कि आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है। एज अ मदर यू आर फीलिंग सैड, और ये चीज तब प्रैक्टिस करो ज्यादा जब वो शांत है। तो जब हम्म वो रात को ठीक था, आराम से मेरे साथ लेटा था, तब मैंने उसको ये चीजें समझाई कि जब आप ऐसा करते हो तो मम्मा बहुत सैड हो जाती है, मम्मा को हम्म हैप्पी फील नहीं होता। तो वो सारी फीलिंग मैंने उसके साथ डिस्कस की। और हम्म माधव भी सैड होता है इसलिए वो नहीं पहनता, तो थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। तो उससे हम्म ये हुआ कि जब अगले दिन उसने वही सिचुएशन, मतलब ऐसा हम्म होता है ना उस टाइम पे माधव की, कि जैसे मतलब कभी उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उस टाइम समझ ही नहीं आता कि उसको क्या चाहिए। उसको हम्म कुछ चाहिए भी नहीं, बस उसको एक हम्म जिद सी होगी है। तो वो कहेगा मम्मा आप यहाँ, उसने मुझे बुलाया मैं नहीं आई, है ना। दो हम्म तीन बार उसने बुलाया, मैं काम में एंगेज हूँ, मैं नहीं पहुंच पाई। तो हम्म उसका मूड ऐसे ऑफ हो जाता है कि फिर वो बहुत गंदा रोता है। और हम्म अगर तब मैं आ भी गई तो भी वो मुझे कहेगा अब यहाँ से हट जाओ। मैं हम्म हट जाऊंगी तो कहेगा यार बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगी तो कहेगा हट जाओ। उस लूप हम्म में वो फंस जाता है। हम्म रोते रहना है और जो मैं कर रही हूँ उसको मना करना है। मैं बैठ रही हूँ तो हट हट जाओ, हट रही हूँ तो बैठ जाओ। तो हम्म उस लूप से उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। हम्म तो उस टाइम पे ये मेरे को आपसे डिस्कस भी करना था। तो उस टाइम तो मैं उसको एक बार थोड़ा सा डांट के, मतलब लाउड वॉल्यूम में बोलती हूँ माधव, है ना, जैसे कम हम्म बैक, तुम कहाँ किस जोन में चले गए हो, वहां से वापस आओ, है ना। हम्म तब वो एक बार को चुप होता है, और मुझे उसको जब दिखता है कि मम्मा का फेस से पता चलता है कि मैं गुस्से में हूँ या उस मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो एकदम डर के थोड़ा सा चुप होता है ना, सॉरी बोलता है मुझे। उसके बाद जब वो शांत हो जाता है, फिर उसका मूड ठीक हो जाता है, थोड़ी सी देर में ही बहुत जल्दी हो भी जाता है ठीक। ये जैसे ही निकलता है जोन से बाहर तो ठीक हो जाता है। फिर मैंने उससे उसके बाद बात की कि जब आप ऐसा करते हो तब मुझे एक तो समझ ही नहीं आता आप रोते रोते क्या मुझे बोल रहे हो, बैठने को बोल रहे हो, उठने को बोल रहे हो, बुला रहे हो, है ना। और मम्मा बहुत ही सैड हो जाती है कि वो अपनी बेबी की हेल्प कैसे करे, है ना। और वेरी आपकी बात नाइस। मुझे, और हाँ, ये आपकी में चीज, कोई ये हेल्प नहीं कर सेंटेंस पाती। इम्पोर्टेंट है। ये सेंटेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबको ध्यान रखना है कि मम्मी बहुत सैड हो जाती है कि मम्मी आपकी हेल्प कैसे करे। तो here you have conveyed your feelings and you are also trying to convey that what is needed. तो वही मैं अब ज्यादा से ज्यादा कल पर 2 दिन से मैं इन्हीं लाइंस का यूज कर रही हूँ कि मेरे को आपकी हेल्प करनी है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ माधव। मैं How to? जैसे वो नंगा घूम रहा है ठंड सर्दी में, तो अच्छा उसने तब मेरी सारी बात सुनी और बोला कि हाँ नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं क्राई करूंगा, मम्मा सैड हो जाती है। मैंने फिर उससे रिपीट करवाया कि मम्मा को क्या फील होता है, मम्मा सैड हो जाती है, क्या मम्मा माधव की हेल्प कर पाती है, नहीं कर पाती है। तो उससे वो रिपीट कराया, उसने आंसर किए। तो जब सेम चीज उसने अगले दिन शुरू करी, Hmm. टाइम पे बोला कि माधव मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने थोड़ा सा वो उस लेवल तक जाने से पहले ही टोन डाउन हो गया। Very good. तो हाँ, उसको तो वो ये बात आ सक्सेस गई। हुआ ना, दिस इज फर्स्ट सक्सेस। हाँ। वेरी हाँ। गुड। हाँ, तो ऐसी को आप सोचो कि इसी को और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और टूल्स मिल हाँ। जाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल। फिर ये बिल्कुल डिफिकल्ट बिल्कुल। नहीं है। हाँ, मैं कुछ चीजों में ये हम्म जिद पे आ जाते हैं, बट उस टाइम पे मुझे बस मेन चीज जो समझ में आ रही है, जब ये जिद में है हम्म उस टाइम पे मुझे अपना पेशेंस बढ़ाना है, हम्म, गुस्से को पी जाना है, क्योंकि तब हाँ। ऐसा लगता है जैसे ये कि अपने आप अपना नुकसान कर रहा है, नीचे से मिट्टी हम्म उठा के मुंह में डाल रहा है, गंदे पानी में हाथ डाल रहा है, उसको कफ कोल्ड हो रखा है और पानी में खेल रहा है, वो भी रोड वाले पानी में। तो ऐसा लगता है अभी इसको एक थप्पड़ लगा के अंदर ले जाऊं कि ये नहीं सुन रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। बट तब मैं पेशेंस, उस टाइम पेशेंस दिखा दूं तो बाद में मैं उसको समझा पाती हूँ, धीरे से उस सिचुएशन से किसी तरह निकाल के फिर बाद में समझा लेती हूँ। बट उस टाइम पे तो किसी और तरह से निकालना पड़ता है, समझाने का काम फीलिंग्स वाला बाद में करती हूँ फिर। इसका भी आंसर माता जी ने दिया था कि वो आंसर है क्यूरोसिटी। हम्म। क्योंकि बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो वो इसलिए हम्म। बाहर जा रहे हैं कि मिट्टी वाले पानी में छप छप करना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड। हाँ। बहुत इंजॉयबल है वो चीज। तो हाँ, वी आर उनके नॉट लिए प्रोवाइडिंग वही। दैट, सो दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। हाँ, मतलब वो मुझे सब ये बात तो माता जी की ध्यान आती है कि ये इसलिए नहीं कर रहे कि इनको बीमार पड़ना है, इनको परेशान होना है, ये कर रहे हैं क्योंकि इनको मजा आ रहा है। पर हमें ये लगता है कि
हमें पता है कि वो चीज इनको वो कर देगी, ट्रबल कर देगी, मतलब हेल्थ को इस को इफेक्ट करेगी, तो इसलिए हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते कि इस हम्म समय इसको कैसे इस चीज से बचाओ। पर हम्म करेंगे धीरे धीरे। मतलब वही, हर चीज का ऑल्टरनेट हम तैयार भी नहीं कर पाते कई बार, है ना। इस टाइम पे जैसे विंटर सीजन है, इस टाइम कफ कोल्ड है, अगर मैंने उसको किसी भी तरह का पानी की चीज खेलने के लिए दे दी, तो वो भी मतलब गड़बड़ हो जाती है, कि घर से भी डांट पड़ती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको कोल्ड है ऑलरेडी। हम्म तो कई चीजें इसलिए भी अवॉइड करनी पड़ती हैं, हम्म एनवायरनमेंट को देखते हुए, लोगों को देखते हुए। हम्म राइट। तो वो हमें हैंडल करना है ना, कि घर से डांट पड़ेगी या बाकी जो वो सब एडल्ट्स हैं तो उनको हमें हैंडल करना है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन और अगर हमने ये सीख लिया कम्युनिकेशन स्टाइल कि बच्चे के साथ हम कैसे बात करें, तो वो भी हैंडल हो जाएंगे, है ना। उनको भी आप सेम चीज बोल सकते हो कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, टेल योर अबाउट योर फीलिंग्स, and I am trying my best, and I feel little hopeful. I feel hopeful that I'll be able to do. I need your support. तो आपने फीलिंग बताया कि मैं होपफुल हूँ, मैं ये सीख रही हूँ कैसे करना है इस सिचुएशन में हैंडल, एंड आई नीड योर सपोर्ट। दूसरी चीज आपने बता दी कि अपने फैमिली मेंबर्स को कि आई नीड योर सपोर्ट। और तीसरा चीज, आप क्वेश्चन करोगे कि विल आई गेट इट फ्रॉम यू, आई एम श्योर आई गेट इट फ्रॉम यू। ठीक है। एक चीज आपने बोल दिया कि क्वेश्चन किया तो उनके कोर्ट में बॉल डाल दिया कि प्लीज, नोबडी विल से नो, नो टू दिस, नो आई विल नॉट सपोर्ट यू। ऐसे कौन बोलेगा? ये तो नहीं बोलेंगे ना फैमिली मेंबर्स कि नो आई विल नॉट सपोर्ट यू, तुम्हारा अकेले का काम है, तुम जाके करो। they will not say this. And then fourth, जो कि और भी higher level है, then you say, I know you will try your best to support me, you are already trying your best to support me। तो उनके हमने साइकोलॉजी में क्या डाल दिया, उनको इम्पोर्टेंस दे दिया, अपना फीलिंग्स और नीड्स बता दिया। ठीक है। और थोड़ा सा वो पगमेलियन इफेक्ट क्रिएट कर दिया, दैट यू आर रियली, यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस एंड यू विल बी डूइंग दिस फॉर मी। So, and like this, you are bringing the whole family together. There is togetherness. There is this we feeling, we are together, है ना, togetherness feeling। और उसमें वो आपको भी सपोर्ट फील होगा, they will not feel alienated, और there is no conflicting situation कि मदर ऐसे कर रही है, मैं ग्रैंड मदर मेरे को ऐसे कर, मैं ऐसे कर रही हूँ, वो ऐसे कर रहे हैं। बिकॉज देर इफ देर आर मेनी पीपल इन द फैमिली, सो उतने ही ओपिनियंस और वो सारा चीज क्रिएट हो जाता है, राइट। बट वेरी गुड, you have begun this process, right? So gradually you will see the change, right? Very nice. Who else would like to share? अदरवाइज मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है, आई शेयर दैट हाउ आई गॉट इनटू सच अ सिचुएशन एंड हाउ आई हैंडल्ड इट। विद्यावती माता जी, आई जस्ट सॉ ऑन योर स्टेटस photos of Kulshekhar and Mahatma. Okay, Aditya Ram Prabhuji, you want to share? Yes, Madaji. I Yes, don't have please. much results, Hmm. but I have trust कि जो मतलब जिस पाथ पे मैं हूँ या जो आप लेके जा रहे हैं जिस पाथ पे, I'm sure the results are going to come Hmm. because जिस पाथ पे हम थे, जो हम कर रहे थे, वहां से कुछ नहीं आ रहा था। Hmm. तो एटलीस्ट अब जिस पाथ पे है वहां पे निगेटिविटी खत्म हो रही है एंड वी कैन सी सम लाइट्स। वो थोड़ा ही दूर है अभी लाइट, बट आई एम श्योर कि अगर हम थोड़ा प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड आप सबके साथ मतलब कनेक्टेड रहेंगे, सो आई एम श्योर कि दिस लाइट विल नॉट बी फार एंड सूनर और लेटर विल बी क्लोज टू दैट। सो आई हैव वेरी पॉजिटिव वाइब्स एंड गुड फेथ कि अगर हम प्रोसेस जो क्लासेस अरेंज कर रहे हैं या जो भी आप टीचिंग
रहा है, तो बड़े बच्चों के साथ में अगर हम एक्सप्रेशन शेयर करेंगे तो दे विल डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड, तो इट इज वेरी गुड। तो आई एम श्योर कि सूनर लेटर हमारे पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी, सो दैट वी विल शेयर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यू ऑलरेडी हैव स्टोरीज लिटिल बिट। तो अभी क्या है कि अभी फर्स्ट स्टेप का आप बता सकते हैं कि मैंने ये ट्राई किया जो आपने नहीं, हमने किया है, मतलब हाँ पॉजिटिविटी है, देर आर पॉजिटिव वाइब्स। हम मैं वही कह रहा हूँ कि हम निगेटिविटीज हाँ जा रही है। जा रही है, तो वो हम मतलब एज सच कोई एग्जांपल नहीं है, देर आर मैनी मैनी इंसिडेंट्स हैपन ड्यूरिंग द डे, बट हाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बिकॉज हम जो कर रहे थे उससे कुछ नहीं आ रहा था। हम्म कुछ नहीं किया तो दो थप्पड़ जड़ दिए, हम्म हमारी बात नहीं माना तो डांट दिया। सो हम्म दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड प्रैक्टिस, और उससे कुछ आने वाला नहीं है। इवन इंस्टेंट में शायद कुछ मिल जाए, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट शायद मिल जाए उस समय, हम्म लेकिन वो लॉन्ग टाइम में वो इम्पैक्ट करने वाला है। यस यस करेक्ट। वो एक साइकिल चलती है कि हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं पिट पिट के, तो फिर अब हम अपने बच्चों को मारेंगे। तो वो यस, एक एग्जैक्टली लर्निंग एग्जैक्टली। दे दिया ना, मॉडलिंग मॉडलिंग कर रहे हैं ना। पेरेंट्स सारा टाइम मॉडलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे चिल्ड्रन विल बिकम लाइक यू ग्रेजुअली। डोंट माइंड, बट मैंने तो मेरी वाइफ को ये बोला था कि आप माइंड मत करना इसको। मैंने तो मेरी वाइफ को ये तक बोला था कि माता जी इतना कैजुअली बता रही हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये बच्चे ऐसे समझने वाले नहीं हैं। इनको ये माता जी समझ नहीं पा रही हैं। मतलब मैं अपनी वाइफ को ये बोलता था कि माता जी हमारे पॉइंट को समझ नहीं पा रही हैं। हाँ ये लगता है, लेकिन ये लगता है हमें। हाँ अभी बिल्कुल अभी करेक्ट, मुझे ये आप नहीं बोल रहे, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन अभी ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि जब गलत करने से उस टाइम पे मैंने कुछ बोला, मैंने रेस की वॉइस और मैंने डांटा, अपना एंगर शो किया, मार पीट की, उस समय कुछ आ गया। बट जैसे मेडिसिन में होता है ना कि आज हम जैसे थायराइड में होता है 25 mg की मेडिसिन लेते हैं, फिर 50 की लेते हैं, फिर 75 की लेते हैं, और ग्रेजुअली जैसे लेते जाते हैं वैसे वो mg बढ़ते जाते हैं, वैसे वो पावर ऑफ डोज बढ़ती जाती है। ऐसे ही इसमें होता है, वो हम धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाते हैं, और वो इतना एक दिन आगे इतना ब्लास्ट हो जाता है कि वो फिर संभलता नहीं है। तो एटलीस्ट वो सिचुएशन तो नहीं है अभी, धीरे धीरे सूनर लेटर रिजल्ट आएगा, बट ठीक है, पॉजिटिविटी दिखने लगी है। आया वो महसूस होने लगा है, मतलब कि कुछ कुछ हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। ये बस इसमें हमें यही समझने की, जो आपने पॉइंट रेस करा है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। ये अगर हम ये समझ जाएं कि प्रोसेस में, जैसे सेम हम स्पिरिचुअलिटी में भी कर रहे हैं ना, अगर हम 1 साल तक माला करते रहे और हमारा गुस्सा कम ना हो, तो उससे उसका ये मतलब तो नहीं है कि प्रोसेस में फॉल्ट है। प्रोसेस सही है, हमारे फॉलोइंग में है। मतलब बस टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इट वर्क्स। तो एक्चुअली बीमारी वो कितनी सीरियस है पेशेंस उस पर रखना है डिपेंड बस। करता है। हाँ हम कितना सीरियस बीमारी है कितनी उस पर सीरियस। डिपेंड करता है। बीमारी है जो जैसे हम प्रभुपाद ने कहा, ज्यादा बीमारी तो ज्यादा राउंड चैंटिंग, जितनी बड़ी बीमारी उतना ज्यादा इलाज। अगर ज्यादा बीमारी यस। होती है, डॉक्टर ज्यादा दवाई दे देता है ना। तो वैसे ही हमको थोड़ा सा और ध्यान दे के ये वाले सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। रिजल्ट विल डेफिनेटली कम। जैसे अभी आनंद किशोरी माता जी ने कहा, थोड़ा सा रिजल्ट आया है, तो एक सीढ़ी हम धीरे धीरे आगे चढ़ते रहेंगे और वो रिजल्ट आते रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, दूसरी तरफ एक पेन जा रहा है। और मैं अपना जस्ट पर्सनल थोड़ा सा ये बताऊंगी कि अ, आपसे मैंने शेयर किया था कि मैं अभी जुवेनाइल काउंसलिंग, गर्ल शेल्टर्स यहाँ पे जा रही हूँ काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ वृंदावन में एक नया गर्ल शेल्टर होम बना है। तो वहाँ पे 10 to 18 years की गर्ल्स हैं, और कुछ मतलब ऐसे बड़ी भी है एज में, लेकिन उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो छोटी एज का है, तो वो उधर रह रही है। वहां पे अभी जैसे 60-70 गर्ल्स हैं, मैक्सिमम की ये स्टोरी है कि घर में पिटाई हो रही थी और वो भाग गई। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की हैं गर्ल्स,
ऐसे नहीं कि ये सब कोई बेकार घर की या ऐसे अनएजुकेटेड फैमिलीज की हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं है या नहीं, कुछ ऐसे गर्ल्स में तो बहुत है ऐसे कि नहीं सहन नहीं हो रही थी, मार सहन नहीं हो रही थी। एक लड़की ने कहा कि मेरे पूरे बॉडी पे निशान हो गए थे, पापा इतना मारते थे कि मेरे से बिल्कुल सहन ही नहीं हो रहा था, इसलिए भाग। और दे से सम तो दे आर क्राइंग कि वी वांट टू गो होम, बट मेनी ऑफ देम दे से मुझे घर नहीं जाना, यहाँ रखो, आप जेल में बंद करके रखो, लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मम्मी मारती है, पापा मारते हैं। तो माता जी हाँ, फैमिली ने ड्रॉप किया हुआ है इन बच्चों को? नहीं नहीं, भाग जाते हैं, पुलिस पकड़ के लाती है। तो वापस घर नहीं छोड़ती है पुलिस? पुलिस अगर छोड़ना भी चाहे तो ये जाना नहीं चाह रही ना, कई लड़कियां वापस ही नहीं जाना चाहती घर अपने। ओके। कहीं भी हमें रखो, हमें घर नहीं जाना, बच्चे ये बोल रहे हैं, और बच्चे की मर्जी के बगैर वो CWC भेजती नहीं फिर वापस घर। तो ये रियलिटी है, हमें दिख नहीं रहा। और जो पेरेंट्स हैं, इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा ना कि हमारा बच्चा कहीं और जाके रह रहा होगा, अगर हमें मतलब जेल में, जेल जैसी सिचुएशन में रह रहा होगा। उन पेरेंट्स ने तो नहीं सोचा होगा ना, उनके हिसाब से तो वो डिसिप्लिन कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं अपने बच्चों को, इसलिए मार रहे हैं। देयर इज अ रीजन फॉर हिटिंग, दे हैव अ रीजन टू हिट, वी ऑल हैव अ रीजन टू हिट। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा, उसमें एक आदमी है, वो अमेरिका में वीडियो बना रहा है कि अमेरिका में ग्रीन लाइट हुआ है, एंड श्रीमती ललिता माथी जी आर फ्रॉम देयर, यू विल टेल, वहाँ रेड लाइट पे बहुत सारी कार्स रुकी हुई है, एंड ही इज मेकिंग दैट वीडियो कि अभी देखो ग्रीन लाइट होगी, बट जो भी कार्स है वो हॉर्न बजाते हैं या नहीं। तो वो रेड ग्रीन लाइट हो गई और सारी कार्स चली गई, किसी ने भी हॉर्न नहीं बजाया। क्या ये पॉसिबल है इंडिया में? इंडिया में पॉसिबल है? कितना हॉर्न 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 करते हैं लोग। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ना कि बिना हॉर्न बजाए हम कार चला सके। मैं वृंदावन से दिल्ली जाती हूँ, मैं एक हॉर्न नहीं बजाती, क्या मैं दिल्ली नहीं पहुंचती? बिना हॉर्न बजाए कार चला सकते हैं ना हम। तो ऐसे बिना मारे बच्चे पाल सकते हैं। It's easier. It's noise free. We just have to learn that trick. Just like with chanting, we can make certain things easy. Okay, and we are here just to learn those tricks and techniques. कि कैसे करें. Very simple. So first trick we have learned एंड to share our feelings and needs. Yes, Prabhuji. माता जी एक और चीज जो मैंने पर्सनली फील की है कि योर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज अगर आप इन सब चीजों Yes, से हर्डल्स से आप निकल जाते हो। उसको very मारना, good. उसको पीटना, डांटना, ये सब। सो योर Yes. इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो प्रोडक्टिविटी आपकी है, यू ऑल्सो Hmm. फील कि यू हैव मोर पावर, मोर एनर्जी, मोर पॉजिटिव Hmm. वाइब्स आपके पास। वो नहीं, वरना अदरवाइज क्या होता है कि जब वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है Hmm. घर में एकदम से बच्चों के साथ में वो चिल्लम चिल्ली होती है, मैंने ये किया, तूने ये क्यों किया, मैं ये काम कर रहा था, तू यहाँ पे क्यों आ गया, मतलब ये Hmm. सब जो होता है, फिर वो एटलीस्ट फॉर सम आवर्स वो Hmm. एकदम पेनफुल सिचुएशन रहती है, तो वो माइंड भी फिर उतना प्रोडक्टिव नहीं रह जाता। तो माई आई पर्सनली फील कि जब हम ये सब मतलब हम थोड़े एफर्मेटिव रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बढ़ जाती है। Hmm. Very good point, Prabhuji. Very good point. Very nice. Thank you for this. Mahasundi Gaurangi Mataji, you had raised the hand. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji. माता जी जस्ट वांटेड टू शेयर, जैसे प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि स्टार्टिंग में फील होता है कि जो आप बता रहे थे कि ये कैसे होगा, छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, बट वही कि एक विश्वास पे चल रहे थे कि होगा होगा शायद। बट नाउ राधिकेश हैज ये रिस्पॉन्ड करने लगा है, कुछ आरती के वर्ड्स बोलने लगा है, और Hmm. जितने भी मैंने चीजें
घर में वो लगा रखी थे, चिट्स लगा रखे थे। अब हम्म ये टच करके बोलता है हम्म गौरांगा नित्यानंदा। अब मैं वीडियो बना के भेज सकती हूँ जो आप बहुत समय से कह रहे थे, क्योंकि अब ये खुद इंडिपेंडेंटली खड़ा होके वहां पे टच करता है खुद ही। बेड के पास लिखा है जो भी। तो ये जो जो हमने चीजें, जितना भी लिमिटेड हमने भजन या जो कीर्तन हमने इसको स्टार्टिंग से गाए हैं, हम्म अब ये आते हैं इसको, मतलब ये वर्ड्स कैच करता है तो मिराक्युलस है। और एक बुक कट आउट बुक्स हैं जो बुक्स में पढ़ाती थी, इसको पूरी बुक याद हो गई है, हनुमान वाली। हम्म वो मेरे लिए इतना बड़ा शौक था। तो वही कि आपका गाइडेंस नहीं होता तो हम शायद बुक्स तो शायद इंट्रोड्यूस करते या नहीं, टॉयज करते या क्या करते। लेकिन स्टार्टिंग से ही 3 मंथ्स या ये 4-5 मंथ्स का था जब आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, तो ये आपने मुझे तभी बोला था कि अब रेडी हो गया, आपने बोला अब दे दो मुझे। तो आपने इसको गोद में लिया था, तो हमने तब से आप बता रहे थे। तो वो बोर्ड बुक सब इसको सब याद है ऑलमोस्ट, मतलब कि ये खुद ही देख देख के बता देता है। और बुक बुक जैसे जो आप बताते हैं, रीडिंग द बुक्स आर द बेसिस, तो वो जैसे बुक इसको कोई भी दो तो ये बुक बुक मेरे को आके दिखाएगा कि ये न्यू बुक है कोई। तो जो आपका मोटिव है कि बुक्स में इंटरेस्ट हो बच्चों को, तो वो हमें फील हो रहा है। तो अब और एनकरेजमेंट आ रही है क्योंकि इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। Thank you very तो much for sharing this feedback, Mataji. Very nice. Very, very nice. I feel also encouraged. ये ना link खत्म होने वाला है. I'll share another link and then we'll continue this meeting. Please join that. ठीक है? ठीक है, Okay. थैंक यू माता जी, Thank वही you. Thank you so शेयर much. करने का मन था। Thank you. हरे कृष्णा। Hare Krishna. We'll get back to communication again and we'll do another हम्म। situation in the next meeting. जी। Okay, now only I'm sharing the link.